Hello everyone, welcome to our channel edu.com. I am Diptayan Chakraborty and today we will be discussing about a very important chapter, that is circulatory system. So without further delay, let's start. So what do we mean by the term circulation? The continuous motion by which the body fluids travel through all parts of the body is called circulation, and the system that deals with it is called circulatory system. Now we will discuss about the importance of circulation. Circulatory system is the system of internal transport in all the multicellular organisms. In case of higher complex organisms, it supplies nutrients and oxygen to all the cells of the body. मतलब इस सर्कुलेटरी सिस्टम के बदौलत सारे न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन्स हम बॉडी सेल्स तक पहुंचा सकते हैं. The metabolism of nutrients releases carbon dioxide, ammonia, etc. gases which are removed from the cells by them immediately. ये सब न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन सेल्स तक पहुंचने के बाद वहाँ पे जो मेटाबॉलिज्म होगा उसके बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट्स रिलीज़ होगा, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, एमोनिया एक्सेट्रा गैसेस रिलीज़ होगा, वो भी वहाँ से सर्कुलेटरी सिस्टम के द्वारा रिमूव किया जाता है. Composition of circulatory system. The component of circulatory system are body fluids, blood, lymph and tissue fluids to carry food, oxygen and other substances. A system of blood vessels and lymph vessels to transport the body fluids. A pumping organ heart to pump blood through these vessels. अब आते हैं बॉडी फ्लूइड्स के बारे में. ब्लड, इट सर्कुलेट्स थ्रू हार्ट एंड ब्लड वेसल्स. लिम्फ, इट फ्लोज थ्रू लिम्फ वेसल्स एंड लिम्फेटिक ऑर्गन्स. टिश्यू फ्लूइड, it bathes the body cells. It is also called interstitial और intercellular fluid. अब नीचे का जो फिगर है इसे अच्छे से देखिए. इसके टिश्यू फ्लूइड का जो पोजीशन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड में बात करने वाले हैं. All the substances from the blood to body cells and from the body cells to blood pass through tissue fluid. मतलब टिश्यू फ्लूइड का पोजीशन देखिए, ये ब्लड और बॉडी सेल्स के ठीक बीच में रहता है. In closed circulatory system, as found in our body and all vertebrates, the blood flows through closed vessels. इसको समझ में शायद आ रहा है आप लोगों को कि closed circulatory system किसको बोलते हैं? जिसके अंदर blood flows in closed vessels. Their finest branches are capillaries, which come closest to the tissue walls. ये जो closed vessels है, इसका finest branches है capillaries, जो इस tissue walls के बहुत ही नज़दीक रहता है. Plasma from blood diffuses out of the capillary wall and forms tissue fluid. ये जो प्लाज्मा, जो लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड है, ये इस कैपिलरी वॉल से डिफ्यूज आउट होकर टिश्यू फ्लूइड तैयार करता है. द टिश्यू फ्लूइड प्रोवाइड्स ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू द सेल. ये टिश्यू फ्लूइड जो है ये अब सेल्स को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स प्रदान करता है. द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द सेल डिफ्यूज इनटू द टिश्यू फ्लूइड. अब जो वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द सेल्स जो बाहर आता है वो भी इस टिश्यू फ्लूइड में डिफ्यूज हो जाता है. जानेंगे अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्लड के बारे में. ब्लड इज थिकर एंड हेवियर देन वाटर. ब्लड इज स्लाइटली एल्कलीन विथ pH between 7.35 and 7.45. Blood volume in man varies from 5 to 6 liters. Blood forms 8 to 10% of the body mass. Blood is salty in taste. अब आ जाते हैं फंक्शंस ऑफ ब्लड के बारे में. Transport of gases lungs to tissues and carbon dioxide from the tissues to the lungs. ब्लड जो ऑक्सीजन लंग्स के अंदर है उसको सारे टिश्यूज़ तक पहुंचने के लिए सहायता करता है और कार्बन डाइऑक्साइड सारे टिश्यूज़ से लेकर लंग्स तक पहुंचना इसका जिम्मेदारी है. ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड. इट कैरीज soluble and digested food, glucose, amino acid, fatty acid, etc. from intestine to all organs of the body. मतलब सब soluble and digested food, मतलब ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड इंटेस्टाइन से लेकर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी तक ब्लड पहुंचाता है. ट्रांसपोर्ट ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स. नाइट्रोजनस वेस्ट्स आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम टिश्यू सेल्स टू लीवर एंड देन टू किडनी फ्रॉम वेयर दे आर एलिमिनेटेड आउट ऑफ द बॉडी. अब ये जो नाइट्रोजनस वेस्ट डिस्पोज करता है सारे ऑर्गन्स, इसको भी ब्लड लीवर तक ले जाता है, वहाँ से किडनी तक, जहाँ से वो एलिमिनेट आउट हो जाते हैं बॉडी से. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हार्मोन्स. इट ऑल्सो कैरीज हार्मोन्स फ्रॉम एंडोक्राइन ग्लैंड्स टू द टारगेट सेल्स. मतलब ये जो हार्मोन्स जो एंडोक्राइन ग्लैंड सिक्रेट करते हैं वो डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम के थ्रू टारगेट सेल्स तक पहुंच जाते हैं. डिफेंस अगेंस्ट डिजीजेस. इट प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज दैट कॉम्बैट विद बैक्टीरिया एंड अदर जर्म्स टू प्रोवाइड इम्यूनिटी टू आवर बॉडी. मतलब ये जो ब्लड का जो सेलुलर कंपोनेंट्स के अंदर एक WBC आता है जिसका एक पार्ट है लिम्फोसाइट, ये एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है जो helps to combat with any type of foreign bodies related to bacteria or other microorganisms
टू प्रोवाइड इम्यूनिटी टू आवर बॉडी, मतलब हमारे बॉडी को सुरक्षित रखने में सहायता करता है। टेम्परेचर रेगुलेशन, ब्लड एब्जॉर्ब्स हीट प्रोड्यूस्ड बाय रेस्पिरेशन इन द इंटरनल टिश्यूज and conveys to skin and lungs for dissipation into the air. अब जानेंगे composition of blood के बारे में। Blood consists of fluid part plasma. It constitutes 55 to 60% of blood. Cellular elements like red blood cells, white blood cells, platelets. अब जानेंगे प्लाज्मा के बारे में। प्लाज्मा, the liquid portion of blood. Plasma is a light yellow colored alkaline fluid. It consists of water, protein, inorganic salt and other substances in traces. The inorganic salts mainly include sodium chloride and sodium bicarbonate. Among other substances contained in plasma are glucose, amino acid, fibrinogen, hormones, urea, etc. The plasma from which protein fibrinogen has been removed is called serum. अब ये serum जो चीज़ है इसके बारे में इसका जो काम है ये हम ब्लड कोआगुलेशन में जानने वाले हैं। अब हम चले आएंगे सेलुलर कंपोनेंट्स। पहला वाला जो सेलुलर कंपोनेंट है रेड ब्लड कॉर्पसेल्स, इसका एक और नाम है एरिथ्रोसाइट्स। Mammalian RBCs are minute biconcave disc-like cells without nucleus, mitochondria, endoplasmic reticulum and Golgi body. RBC are 7.6 micron in diameter. The small size plus the concavities on either side provide a large surface area which makes them very efficient in absorbing oxygen. मतलब RBC का काम क्या है? ये absorb oxygen और transport this oxygen to different parts of the body. They are the most numerous cells in human body. Each cubic millimeter of blood contains 5 to 5.5 million RBCs in man and 4 to 4.5 million RBCs in women. RBCs are formed in the red bone marrow of flat bones like our ribs and breast bones and in the end of long limb bones. In embryo, RBCs are formed in spleen and liver. The process of maturation of RBCs is called erythropoiesis. Vitamin B12 and folic acid are essential for the maturation of RBCs. अब आएंगे हीमोग्लोबिन के बारे में। हीमोग्लोबिन, द ऑक्सीजन कैरिंग पिगमेंट. The hemoglobin is formed of an iron containing part hemin and a protein part globin. मतलब हीमोग्लोबिन ये जो वर्ड है ये दोनों वर्ड को कंप्रेस करके बनाया गया है। एक है हीमिन जिसका अर्थ है आयरन और ग्लोबिन जिसका अर्थ है प्रोटीन. It has the ability to combine readily with oxygen to form oxyhemoglobin, an unstable compound which readily gives up oxygen to the body tissues. मतलब ये हीमोग्लोबिन आरबीसी के अंदर रहता है और ये readily रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ टू प्रोड्यूस एन अनस्टेबल कंपाउंड ऑक्सीहीमोग्लोबिन जो रेडिली ऑक्सीजन गिव आउट करता है बॉडी टिश्यूज़ को. हीमोग्लोबिन ऑल्सो कंबाइंस विथ स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ब्रिंग्स इट टू द लंग्स फ्रॉम द टिश्यू सेल्स. Hemoglobin has very strong affinity for carbon monoxide, forming a stable compound carboxyhemoglobin. This cuts out the capacity of blood of transporting oxygen, which leads to suffocation and even death. अब चले आते हैं नेक्स्ट सेलुलर कंपोनेंट वाइट ब्लड सेल या वाइट ब्लड कॉर्पसेल, एक और नाम है इसका ल्यूकोसाइट्स. WBCs आर न्यूक्लिएटेड इरेगुलर एमीबॉइड शेप. इसका न्यूक्लियस है लेकिन इसका कोई परफेक्ट डेफिनेट शेप नहीं है, इसलिए इरेगुलर या एमीबॉइड सेल्स बोला जाता है इसको. दिस नंबर्स 5000 to 9000 per cubic millimeter of blood. They have a lifespan of 12 hours to 12 days. The process of formation of leukocytes is called leukopoiesis. WBCs having granules in cytoplasm and an irregular and many-lobed nucleus is called granulocytes. WBCs having no granules in cytoplasm and has large rounded or kidney-shaped nucleus is called agranulocytes. मतलब WBC different types of WBCs are there. So जिन सब WBCs के cytoplasm में granules है और जिन लोगों का जिसका न्यूक्लियस मेनी लोब्ड है उसको ग्रैन्यूलोसाइट्स बोलते हैं, और जिन सब में साइटोप्लाज्म में कोई ग्रैन्यूल्स नहीं है उसको WBC, उस टाइप ऑफ WBC को एग्रैन्यूलोसाइट्स बोला जाता है. अब आएंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रैन्यूलोसाइट्स. देखिए 3 टाइप ऑफ ग्रैन्यूलोसाइट्स है, न्यूट्रोफिल्स, यूसिनोफिल्स, इसका एक और नाम है एसिडोफिल्स और बेसोफिल्स. इसका 3 ही फिगर दिया हुआ है पास में, अब देख लीजिए. देखिए टाइप्स ऑफ ल्यूकोसाइट एग्रैन्यूलोसाइट्स, 2 टाइप्स ऑफ एग्रैन्यूलोसाइट्स हैं, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स.
अब हम चले आएंगे इसके बारे में और भी जानकारी के लिए। एसिडोफिल्स और यूसिनोफिल्स kills large parasites, detoxify bacterial toxins, promote tissue inflammation, नंबर इंक्रीजेस ड्यूरिंग इन्फेक्शन एंड एलर्जिक रिएक्शंस। मतलब अगर आपका एलर्जी हुआ है तो आपका ये ईओसिनोफिल जो नंबर है ये बढ़ जाएगा, क्योंकि इसका काम ही है टू किल लार्ज पैरासाइट, डिटॉक्सीफाई करता है ये बैक्टीरियल टॉक्सिन को भी, और प्रोमोट टिश्यू इन्फ्लेमेशन। अब आएंगे बेसोफिल्स के अंदर। इट कंटेंस हेपेरिन जो एक्ट्स एज एंटीकोआगुलेंट। आपके बॉडी के अंदर जो ब्लड है वो कभी क्लॉट नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि ये केमिकल हेपेरिन है जो एक्ट्स एज एंटीकोआगुलेंट। इट ऑल्सो कंटेंस हिस्टामिन दैट इज इन्फ्लेमेटरी एजेंट. इट इज़ रिलीज्ड इन रिस्पॉन्स टू एलर्जीज एंड इन इंज्योर्ड टिश्यूज टू डायलेट ब्लड वेसल्स। मतलब अगर आपका बॉडी में कोई इंजरी हुआ है, अगर कोई का टिश्यू या कोई ब्लड वेसल इंज्योर्ड हुआ है, तो तब ये हिस्टामिन सिक्रेट हो जाता है टू डायलेट द ब्लड वेसल। अब चले आएंगे हम न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स का काम ही है ये इनगल्फ बैक्टीरिया माइक्रोब्स बाय द प्रोसेस ऑफ फैगोसाइटोसिस. इट ऑल्सो हैज़ अ characteristic to squeeze out through the capillary wall at the site of injury by the process of diapetesis. अब चले आएंगे दो टाइप ऑफ एग्रेन्यूलोसाइट्स के बारे में जानकारी के लिए। लिम्फोसाइट यही है वो WBC जो प्रोड्यूस एंटीबॉडी, यही बॉडी को इम्यूनिटी प्रदान करता है। Monocyte engulf microorganisms and own out tissue cells, comes out in the tissue and acts as macrophages, also called wandering cells. मतलब ये इसका काम भी न्यूट्रोफिल्स की तरह ही है, सिर्फ लेकिन ये थोड़ा न्यूट्रोफिल्स से बिग साइज़ है, इसलिए ये डायबिटीज़ कर नहीं पाता। इसको हम वॉन्डरिंग सेल्स के नाम से भी जानते हैं। और ये जो जैसे द प्रोसेस बाय विच इट engulfs बैक्टीरिया और अदर माइक्रोब्स इज नोन एज मैक्रोफेजेस। अब चले आएंगे ब्लड प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट्स के बारे में जानकारी के लिए। प्लेटलेट्स आर स्मॉल ओवल एंड स्पेरिकल नॉन न्यूक्लिएटेड डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स. दे आर 3 to 4 micrometer in diameter and 2 to 3 lakhs per cubic millimeter of blood in number. They are essential in blood clotting. मतलब ये प्लेटलेट्स का काम ही है ये ब्लड क्लॉटिंग करना, और ये ब्लड क्लॉटिंग हम हमारे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में विस्तारित जानने वाले हैं. सो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड in this video. Hope you would be delighted if you give a big thumbs up to this video. You can drop your or any doubts in the comment section. If you are new to this channel, please subscribe and hit the bell icon for further education updates. Thank you.